السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا یوٹیوب میرے ساتھ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اتوان مسجد میں 3 روزہ جو ہے اجتماع ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی سیول کی اتوان مسجد ہے. مسلمان ماشاء اللہ بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں, بہت زیادہ بڑی تعداد میں. خدایا فضل فرما دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہم لوگوں کو کہ بھائی ہم لوگ آئے ہیں دین سیکھیں. ماشاءاللہ یہاں پہ کافی ملکوں کا بندے آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا جگہ ہے, بڑا سکون مل جاتے ہے. کوریا میں جو ہے نا یہ بڑا مسجد ہے اللہ کی, ہمیں یہاں پہ نماز پڑھ کے ہمیں بڑا سکون مل جاتے ہے. شکر الحمدللہ. دنیا کے مسلمانوں سے میرا یہی پیغام ہے, اس طرح پیار محبت سے اپنے اسلام کو اور مزید پھیلائیں. میں خود ہی پاکستانی ہوں. میں کراچی سے فالو کر رہا ہوں. میں سب سے پہلے بھائیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں, لیگل طریقے سے آ جاؤ, چاہے ہم لوگ کا پاکستان کا نام جو ہے نا روشن ہو جائے, مشہور ہو جائے. اور کوریا بہت اچھا ملک ہے. آپ لوگ ویلکم ٹو کوریا. ہم لوگ سے جو خدمت ہوئیں گے اللہ رضا کے لیے کریں گے. اجتماع تو ماشاءاللہ بہت اعلیٰ تھا. یہاں کے ایسا لگتا ہے جیسے مطلب ہمارے ملک میں ہی ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ پوری مسلم فیملی ہے نا. جو ہمیں سعادت حاصل ہوئی نماز ادا کرنے کی, یہاں پر بہت خوشی ہوئی اپنے لوگوں کو دیکھ کر. یہاں کے ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ کسی غیر مسلم کنٹری میں ہم آئے ہوئے ہیں, تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے یہاں کے. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے. الحمدللہ یہ وہ مدرسہ ہے جو کہ سعودی عرب کی مدد سے بنا ہے. یہاں پہ کورین اور تمام مسلمان یہاں کے بہترین اسلامی تعلیمات. میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ. خدایا فضل فرما دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. ماشاءاللہ یہ اتوان مسجد میں جتنی بھی ہماری انتظامیہ ہے, یہ سب کورین مسلمان ہیں جو یہ لوکل ہے. خطبہ بھی دیتے ہیں. آج خطبہ دیا ہمارے کورین امام صاحب ہیں. کچھ عرصہ قبل وہ مسلمان ہوئے, پھر گئے ایک دینی مدرسے میں, وہاں پہ انہوں نے علم حاصل کیا, اور ماشاءاللہ وہ یہاں پہ یعنی خطاب بھی کرتے ہیں. اور ان کے ہاتھ پہ بھی کافی حضرات مسلمان ہو چکے ہیں. اچھا, تو یہاں پر جو اجتماع ہوتا ہے یہ 1 سال کے بعد ہوتا ہے یا 6 مہینے کے بعد ہوتا ہے؟ یہ کس طریقے سے کیا پلان کیا جاتا ہے, کس طریقے سے دعوت دی جاتی ہے, اس کے بارے میں بتائیے. اجتماع جو ہے نا, یہ جو اجتماع منعقد ہوا ہے یہ سالانہ اجتماع ہوتا ہے. اس کو جو ہے نا ہم سالانہ تبلیغی اجتماع کہتے ہیں. مساجد کے اندر سیکھنے سکھانے کا سلسلہ, مساجد میں گشتوں کا سلسلہ, یعنی گھومنا پھرنا, مسلمان بھائی کو
जाके दावत दे के मिन्नत समाजत करके मस्जिद में लेके आना। फिर वीकली जो है ना हम यहाँ पे सब दोस्त जमा होते हैं, वीकली सैटरडे नाइट को, और जमा होके सब दोस्त सोचते हैं, फ़िक्र करते हैं कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये आली दीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ ये अजीम दीन हर घर में पहुँच जाए, हर कच्चे पक्के मकान में पहुँच जाए। अच्छा, माशाल्लाह ये हज़ारों की तादाद में मुसलमान आए, चाहे वो किसी भी मुल्क से हैं, तो इसके लिए फ़ंड कौन करता है? मतलब कितना पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है? ज़ाहिर एक कदम उठाना हो तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो खाना पीना रहना, ये वाशरूम वज़ू तक का सिस्टम बनाया है माशाल्लाह। तो अल्लाह उनको अजर दे, वो बहुत ज़्यादा डबल दे, वो इंशाल्लाह देगा। तो इसके लिए फ़ंड कौन देता है? कोई एम्बेसीज है पाक मुस्लिम वो देती हैं या वर्कर्स जमा करते हैं, क्या करते हैं? देखिए जी, हमारे अकाबरीन और हमारे हजरात फरमाते हैं कि जब तक आप किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए 3 काम न कर लें, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए 3 काम न कर लें तो आपके दिल में उस चीज़ की कदर नहीं होती। माल, जान, वक्त। जब आप किसी चीज़ पे माल, जान, वक्त लगाते हैं तो उस चीज़ की कदर आपको होती है। तो अव्वल तो हम उसी दस्तरखान पकाने की खिदमत हम करते हैं, उसके लिए कुर्बानी लोग देते हैं, दोस्त पूरी पूरी रात जागते हैं। गोश्त का यहाँ पे आपको अंदाज़ा है कि हलाल गोश्त का इंतज़ाम करना फिर इतने बड़े पैमाने पे, जहाँ 3000 लोग खाना खाएं 3 टाइम, तो मुश्किल होता है, लेकिन ये उनकी कुर्बानी है। जहाँ तक ताल्लुक़ है माल का, पैसों का, तो वो सब साथी से दस्तरखान में भी जमा किए जाते हैं। उसमें जो फ़ंड कम हो जाता है तो जो हमारे मेंबर हजरात हैं, हर हल्के से हमने यहाँ पे 14 हलकात बनाए हुए हैं, यानी 1 से लेकर 14 तक, जेजू 2 तक का भी हमारा हल्का बन चुका है। तो उन हल्के के जो अमीर हजरात हैं उनको हम ये इस बात पे तरगीब देते हैं कि वो अपने अपने हल्के से ये पैगाम चलें कि जो है जितना हो सके, जो फ़ंड कम है, हर एक साथी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा डालें। तो इस तरह जो है ना, ये हमारा कोई एम्बेसी या कोई सरकारी गवर्नमेंट या वो दे भी तब भी हमारे हजरात से ये ममानियत है कि हम किसी से उसमें हेल्प ना लें, क्योंकि बाहर से अगर एक चीज़ आएगी तो फिर हमें दीन की कदर नहीं होगी। तो दीन पे अपने माल, जान, वक्त हम लगाएं ताकि हमें दीन की कदर हो। तो ये सियोल की सेंट्रल मस्जिद जो है तकरीबन कोरिया में बड़ी मस्जिदों में इसका शुमार है। तो इसके अलावा छोटी बड़ी मस्जिदें तकरीबन कोरिया में कितनी हैं? जी हज़रत, कल हम इसका लगा रहे थे, कारगुजारी ले रहे थे हमसे हमारे अकाबरीन, तो जब उसमें डॉक्यूमेंट में 26 मसाजिद आई हैं यहाँ पे, जिसमें से करीबन अभी 3 से 4 मसाजिद इसी साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी हैं। कुछ जो है ना ज़ेर तामीर है। अगर वो ज़ेर तामीर मसाजिद का भी हम अंदाज़ा लगाएं तो 30 के करीब मसाजिद बनती है, यानी मुस्तकिलन ज़मीन लेके मस्जिद तामीर कर रही है। मुसल्लों का यानी किराए पे, रेंट पे लेके, वो तकरीबन जो है ना 180 के करीब मसल्ले हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे मुसलमान फॉरेनर्स ज़्यादा हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उज़्बेकिस्तान। कोरिया में मुसलमानों की, कोरियन जो नेशनलिटी उनकी रेशो बहुत कम है, तकरीबन कितनी है? हज़रत, कोरियन मुसलमान डॉक्यूमेंटेशन में जो कि हमारे पास यहाँ मस्जिद में सिजिल्लात यानी वो मौजूद है, रजिस्टर्स, उसमें तकरीबन 36,000 के करीब है। सुभान अल्लाह। ये वो हजरात हैं कि जो सऊदी अरब में मजदूरी करने गए, अमारात में गए मजदूरी करने, लीबिया, कतर, बहरीन और इराक में गए, वहाँ पे उन्होंने वो इस्लाम से मुतासिर हुए, कलमा पढ़ा उन्होंने, फिर वापस आ गए। आप गाहे बगाहे देखते होंगे टैक्सी ड्राइवर्स या कहीं पे जाएंगे तो वो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। जी जी, ये ठीक है ना, वो सारे तकरीबन इस्लाम से उन्होंने सीखा, लेकिन चूंकि ये हमारी कमी है, हमने दावत का काम नहीं किया, उनको समझाया नहीं, बुझाया नहीं, बताया नहीं, तो इंसान भूल जाता है। इंसान और मुरक्कब मिनन निस्यान, इंसान तो भूल से जो है ना मुरक्कब है। तो मैं एक सवाल पूछूंगा कि बात आपकी मतलब पूरी कंप्लीट ही हो गई है। कोरिया में जैसे कि मुसलमान जो है उसका सुन्नती रसूल के मुताबिक दाढ़ी रखना, लिबास ऐसा पहनना, यहाँ पे कोरियन का क्या रिएक्शन होता है कि यार इसने तो लिबास ऐसा पहना, इसने दाढ़ी रखी हुई है, कभी इन्होंने कोई बुरा महसूस किया है या इन लोगों ने अच्छा महसूस किया है, क्या इनका रिएक्शन होता है? क्योंकि आपने नोट किया कि आप दुनिया में पूरा कोरिया माशाल्लाह जो है ना, मैं हकीकत आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। ठीक है ना, हमारे ये जहन बना हुआ है, कुछ लोगों ने मीडिया के जरिए जहन बना दिया, नहीं, बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। इमिग्रेशन में चले जाएं तो संग नेम कहते हैं, यानी उस्ताद हैं आप हमारे, और जो है ना बहुत मोहब्बत से बिठाते हैं। अगर ज़्यादा लोग खड़े हैं तो फिर भी हमें प्रेफर करते हैं। उनका उसूल ये है कि अपना भी कोई हो तो नहीं, लेकिन हमें वो उसमें मोहब्बत से पेश आते हैं और हमें यानी इज्जत की निगाह से देखते हैं। मसाजिद में मुकम्मल हमें आज़ादी है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें मसाजिद से रोका गया हो कि भाई आप जुम्मे में तंग करते हैं। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, पाकिस्तान मैं नाम तेरा धड़कनों में, अल्लाह इलाहा मजा आ जाए इल्लल्लाहु। हमें दीनी जो है ना इस्लाहात बहुत चीज़ों का पता चला है। इधर इज्तिमा में बहुत चीज़ों
का जो पता नहीं था इधर चला है। इतिहाद देखने को मिला है, जितने भी मुसलमान हैं सब मुल्कों से आए हुए हैं, सब यहाँ पे इकट्ठे हैं। जो दुनिया से कमाया इसको दुनिया में इस तरह से आगे लगाएं कि ये हमें फ़ायदा दे, ना कि नुकसान पहुँचाए। हमें ये मसलन मिलने को मिला कि इत्तेहाद और मसलन यूनिटी के बारे में मुसलमान का ये काम है कि नमाज पढ़े। जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो इंडिया में भी इज्तिमा में जाया करता था और यहाँ पे भी आया हूँ। सारे मुसलमान भाई एक जगह, हर कंट्री के मुसलमान भाई, ये मौका मिलता नहीं है। अच्छा। अपने वतन में रह के नहीं ये मौका मिलता है जो यहाँ पे मिला है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह इंडिया में तमाम मुसलमानों को, इंडिया को भी काम। जी जी, दुआ में दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब सब मुसलमान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये 3 रोज़ा इज्तिमा है, इसको रखने का मकसद ये है कि दूर दराज से, ये सालाना इज्तिमा है, हर साल होता है यहाँ पर, कि हमारी ज़िंदगी जो हैं वो उसका रुख बदल जाए, उसका रुख दीन की तरफ आ जाए, अल्लाह पाक के हुक्म और प्यारे नबी की दी कि हमारी ज़िंदगी में आ जाए। तो कहने का मकसद ये है कि कामयाबी जो अल्लाह ताला ने रखी है दीन के अंदर रखी है। हम तो तुम्हारे पीछे तरस रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे भाई हैं। तो भाई ये हमारे खान साहब से मिलके बहुत खुशी हुई है। हमारे भाई साहब से तो हम फोन पे बात करते हैं तो नहीं करते। क्या हाल चाल है भाई? तो भाई बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके ताउन का। आपने ये अब मैसेज देना चाहिए अपना ज़बान से। ये वीडियो क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा खान साहब से जब मैं मुलाकात हुई है तो दिल बाग बाग हो गया ना। तो इनका मैसेज मुझे सबसे अच्छा लगा है कि अगर आपने पाकिस्तान का वाकई में नाम रोशन करना है तो लीगल तरीके से है। और लीगल कोई खिदमत करे, कोई चाहे, कोई हमारा फर्ज बनता है। नहीं, आपका फर्ज बनता है। हमारा भी 2 साल हो गया, हमारा भी कुछ फर्ज। चलो कोई चाय, कोई सब कुछ खाया पिया है, सब कुछ किया है, तो अभी कुछ खिदमत करें, कुछ खिदमत मौका दे। अल्लाह ताला को खुश रखे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे, दुनिया किसी कोने पे हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान। तो इतना बड़ा हुजूम देकर ना मेरा ये उम्मीद नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अगर इस तरह लोगों का इज्तिमा और आम लोग यहाँ पे आए ना तो इनसे दीन भी फैलेगा और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होगा। काफ़ी कंट्री से लोग आए हुए हैं, जैसे जापान से दोस्त आए हैं और इंडोनेशिया से काफ़ी कंट्री से लोग आए हैं। माशाल्लाह मिल के बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ दीन को ये बारे में सीखने को मिला। ऐसा माहौल था जैसे हम एक फैमिली हैं, तो एक दूसरे को सिखाने के लिए कुछ मिला और सीखने के लिए कुछ मिला। तो बहुत अच्छी गैदरिंग रही है और इस्लाम के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल हुई है। आपका असल मकसद जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा है, और हमारा जो है आप देख लें कि अब कोरिया में आने के बाद हमारे हालात क्या हो जाते हैं। में ऐसे मौके जो है ना भाई, एक किस्म का अल्लाह ताला की नेमत समझा जाए इनको और इनसे भरपूर तौर पर फ़ायदा उठाया जाए। और मस्जिद में बैठ कर बहुत दिल को सुकून और राहत मिली है। कोरिया में सिर्फ और सिर्फ हम पैसा कमाने आए हुए हैं, लेकिन जब हम यहाँ आके देखें तो यहाँ लोगों की जो मेहनत है इस्लाम के बारे में और अपने मज़हब के बारे में और लोगों को राग़िब करना अपने इस्लाम की तरफ, तो वो हमें देख के हमें ये लगा कि हम कुछ भी नहीं है इस्लाम में। हमारी औकात जो है ना ज़ीरो के बराबर है। बहुत दिनों बाद यानी कि रूह को सुकून सा मिला है। नमाज पढ़ी है, इधर जुमा पढ़ा है, तो दिल को सुकून मिला। ये मस्जिद के गेट के बाद जो है तस्वीर बताई गई है कि इस तरह का पूरा मैप है। और जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो बाहर माशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और अगर इस तरह दिखाया जाए तो इन्होंने पहले ही बताया कि जो मिनी स्कर्ट में आएंगे या शॉर्ट्स में आएंगे उनके लिए आना मना है। कोरियन लैंग्वेज में भी बताया हुआ है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बताया हुआ है। हाँ भाई दोस्तों, जुम्मा तो बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब दोस्तों ने, मगर पाकिस्तानी दोस्त जो हैं बहुत ज़्यादा जमा हुए हैं और बहुत इस्तकबाल किया है ना, मतलब कि बहुत खुशी से मिले। इस तरह की यूनिटी होती रहेगी तो यकीनन पाकिस्तान आगे जाता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओह थैंक यू सो मच भाई। लिटिल इंडिया सियोल से दोस्त आए थे, मतलब कि जो इनके ऑनर हैं कि भाई हमारे रेस्टोरेंट में चाय ज़रूर पिए। थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं कि कैसा है ये। अस्सलाम वालेकुम। तो ये माशाल्लाह रेस्टोरेंट है, बहुत ज़बरदस्त। भाई लिटिल इंडिया सियोल की तरफ से हमें मिल रही है। इस वक्त हम बैठे हैं चाय पीने। वो चाय की क्या बात है। क्या टेस्ट है?
माशाल्लाह ज़बरदस्त फैंटास्टिक खा के चेक करो इतना ताज़ा है, इतना मज़ेदार है, ऐसे खस्ता, ऐसे लजीज, ऐसे पाकिस्तान में चुनवी दुकानें हैं जिसमें मिलता है। ओए होए होए, आप चेक करके बताइए। मैंने खा ली। ये आपकी बड़ा, ये मेरा बड़ा। अच्छा, रिएक्शन बताएं कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त, परफेक्ट, बिल्कुल अच्छा था। अभी ये 5 आए हैं, मेरा दिल कर रहा था कि 5 के 5 खाना। बहुत ही लजीज है, बहुत मज़ा आया। तो मेरा ख्याल है कुछ ले जाते हैं पैकिंग करके, रास्ते में खाते हुए खिलाते जाएंगे। कोरियन को सौगात के तौर पे दिया जाए ना ये चीज़, यकीनन वो इंटरेस्ट लेंगे। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे।